Bismillahirrahmanirrahim. I very welcome you all students of Standard 6 to this our Municipal Corporation of Greater Mumbai's virtual training centers online video session. And students, today we are going to learn about drawing a bar graph in bar graph. सो बच्चों हम यहाँ पर स्टैंडर्ड 6 में मैथमेटिक्स में आज हमारा जो टॉपिक है वो बार ग्राफ में यानी सुतूनी तरसीम में हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि सुतूनी तरसीम किस तरह से बनाई जाती है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से आप अलग अलग जगह पर जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं सुतून या बार वो आप अक्सर से देखते हैं। ठीक है, तो किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं ये इसके बारे में आज के सेशन में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ड्राइंग अ बार ग्राफ देखते हैं। अंडरस्टैंड हाउ द गिवन डेटा इज शोन एज बार ग्राफ। सो as for example, information about the marks secured by Keshav in the final examination. 5 subjects are given here. Show the information in the bar graph. So here are the subjects: Marathi, Maths, Science, Social Studies and English. So in Marathi he got 80 marks, in Maths 90, Science 90, Social Science 70 and English 60 marks is there. So we have taken here the marks how he obtained there. The chart is on your screen. On the basis of this chart we are supposed to draw the bar graph here. So first of all, what suppose we have to do here, so first we have to write the subject here, means topic. So subject and marks secured, this one is the topic for this bar graph. And first we have to draw x-axis, so we have done that. Thereafter y-axis, so y-axis is on your screen there. So x-axis and y-axis are on your screen and mark the O here. So their point of intersection is there. So now यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ऊपर जो है तो उन्वान लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसी तरह से ये x एक्सिस ले लिया हमने, y एक्सिस ले लिया है। इसी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर ये O जो है तो ये हमने यहाँ पर लिया है, x और y महवर खींचे हैं हमने और इस इनके नुक्ता तकाता पर O मार्क किया है हमने। इस तरह से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सो हम इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, नुक्ता तकाता जिसे कहते हैं। सो यहाँ पर अब आगे हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरह से आगे हमें काम करना है। सो राइट द नेम्स ऑफ द सब्जेक्ट ऑन द एक्स एक्सिस। सो हेयर आर द नेम which are the subjects here. Marathi, Maths, Science, Social Science and English are the subjects. And now we are supposed to mark the divisible by 10. Okay, so marks are here. So 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 90 is the highest marks here. You will observe here. So we marked up to 90 here. You can also mark it up to 100 also, but there is no space, therefore I marked it up to 90. So afterwards you can take the scale of 1 centimeter for 10 marks. So we are supposed to write here the scale here on y-axis. 1 unit is equal to 10 marks. 1 unit is equal to 10 marks. Okay, like this 10 marks we are supposed to write here. Okay, like this 10 marks. So like this we are supposed to write the scale here and write the scale on the top
and right as I have done here. तो बच्चों हमें इस तरह से जो है तो मार्क्स 10 तकसीम पजीर है, इसलिए y एक्सिस पर या y महवर पर पैमाना हमने जो लिया है वो एक सम बराबर 10 मार्क्स लिया है, ठीक है। और ये जो है तो हमें ऊपरी सिरे पर दाएं जानिब पैमाना लिखना है, ठीक है। इसी तरह से अब हम यहाँ पर x महवर पर हर मजमून के नाम के ऊपर मुनासिब ऊंचाई का सुतून खींचना है। अब हमें यहाँ पर अभी जैसे मराठी दिया है, सो मराठी में हाउ मच मार्क्स इज स्कोर्ड, so he scored 80 marks, so we are supposed to mark on 80. Okay, so this one is a 80 mark. Okay, so up to this mark we are supposed to take the bar here. So up to 80 I mark this one. Thereafter mass is there, so mass how many marks he scored here on mass, so 90 marks is here. So you can see here this one is a 90 marks. Okay, so up to 90 marks I mark this one. And in science you are supposed to see the similar 90 marks is here, so I marked it up to 90, this like this. Okay, so here is up to 90. Thereafter social science is there, so 70 is here, so I marked it up to 70, so 70 is here. So you will also observe there 70 up to 70, this one, this mark. And thereafter 16 English, so this is the remaining one subject 60, so 60 is here, so I have supposed to come up to this place. Okay, so I marked here, and like this we have to draw a bar here up to 60 like this. So we can make a subject and marks scored bar graph like this. So you can do like this many questions. So here is the question for you from practice set 19. So the names of the heads of some families in the village and the quantity of the drinking water consumed in one day are given below. Draw a bar graph for this data. So scale is here on y axis 1 centimeter is equal to 10 liters of water. तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सवाल दिया हुआ है। क्या सवाल दिया हुआ है इस एक्सरसाइज में, जो कि पहला सवाल है हमारा इस एक्सरसाइज का, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ 19 मश्क सेट में कि झैल में एक गांव के कुछ ख़ानदानों के सरपरस्तों के नाम और इनके ख़ानदान में एक दिन में पीने के पानी की मकदार का इस्तेमाल दिया हुआ है। दी हुई मोतियात की मदद से सुतूनी तरसीम बनाइए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दिया हुआ है, रमेश 30 लीटर्स ऑफ यूज्ड वाटर, शोभा 60 लीटर्स वाटर यूज्ड, अयूब 40 लीटर्स वाटर यूज्ड, जूली 50 लीटर एंड Rahul is 55 liter. So on your screen students, we just put up that data on this slide for only the purpose for making the graph over here. तो आपको इस तरह से इस बॉक्स को जो है या इस खाके को इस जहाँ पर आप तरसीम बना रहे हैं वहाँ आपको लाना नहीं है। हमने सिर्फ आपको ये मालूमात रहे एक स्क्रीन पर, जिसकी मदद से हम आसानी से जो है तो बार ग्राफ तैयार कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको स्क्रीन पर सामने रखा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले जो है तो जैसे कि हमने देखा था, हमें यहाँ पर तरसीमी कागज़ लेना है। तरसीमी कागज़ लिया हमने और उस पर सबसे पहले उन्वान लिखा है ना। तो उन्वान क्या लिखा हमने, फैमिलीज़ एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर कंज्यूम्स हेयर, ठीक है। वी आर व्हाट वी सपोज वी हैव टू डू हेयर, सो वी मार्क्ड हेयर एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस इज हेयर, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस हो गया और वाई एक्सिस हो गया है, ठीक है।
तो यहाँ पर अभी हमें यहाँ पर क्या लेना है, सबसे पहले एक्स एक्सिस पर यहाँ पर नाम ले लिया हमने, शोभा, रमेश, शोभा, अयूब, जूली, राहुल, है ना, ये नाम हमने ले लिए। अब इसके बाद जो स्केल दिया हुआ था वो स्केल आपको याद होगा, क्या दिया हुआ था स्केल, स्केल दिया हुआ है जो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लीटर्स। सो आप देखेंगे 10 लीटर के डिफरेंस से हमने यहाँ पर मार्क किया है, ठीक है, इस तरह से। तो आप स्केल देख सकते हैं यहाँ पर ऑन वाई एक्सिस 10 लीटर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लीटर्स ऑफ वाटर, यहाँ पर हमने ले लिया इस तरह से, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, रमेश है जैसे, तो रमेश कितने लीटर वाटर कंज्यूम करता है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये है 30 लीटर्स, ओके। सो 30 लीटर्स के लिए हमने यहाँ पर मार्क किया करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर मार्क किया है और यहाँ तक हमें ये ग्राफ बार खींचना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने किया इसे। नाउ व्हाट अबाउट द शोभा, सो शोभा इज 60, so we are supposed to mark on 60, so here is the 60, so up to this 60 we have to make the bar here. And now Ayub is on 40 here, so 40 के लिए अयूब को यहाँ पर मार्क करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा अप टू दिस 140, ये देखिए यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद है जूली, सो जूली कितने तक है, 50 तक के, ओके। तो ये यहाँ पर हमें 50 तक की जूली को मार्क करना है। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर 50 जूली हो गई, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद राहुल है, राहुल 55 लीटर पानी कंज्यूम करता है। तो 60 और 50 के बीच में आप देखेंगे थोड़ी हल्की मोटी लकीर है, जो हाफ है 5 तक के, तो इससे हमें यहाँ पर मार्क करना है, राइट। तो इस तरह से हमने यहाँ पर मार्क करना है इसे। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये हमारा हो गया राहुल 55 लीटर्स पर, इस तरह से। तो आप देखेंगे बच्चों कि इस तरह से हम कोई भी ग्राफ तैयार कर सकते हैं इजीली, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेते चले इसका, ताकि हम जो है तो हमारे पास इस तरह से आंसर रेडी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बनाने में काफ़ी टाइम जाएगा इसको, है ना, जितना जल्दी हम समझा रहे इतना जल्दी नहीं बनेगा इसको, और इससे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ऑन योर स्क्रीन देयर इज़ अनदर क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज़ देयर, द नेम्स and the numbers of the animals in a certain zoo are given below. Use the data to make a bar graph here, ठीक है। अब scale is there on y axis 1 centimeter is equal to 4 animals, okay। so आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ एनिमल्स नंबर्स क्या दिए हैं, 20 डियर्स है, टाइगर 4 टाइगर्स, मंकी 12 है, रैबिट 16 है, पीकॉक 8 है, ओके। सो दीज आर द एनिमल्स इन द zoo there, and we have to make a graph of it. So we have taken the bar graph, we have taken here the graph first for making bar graph, and now we have taken the data. So data is on your screen there. So what suppose we have to do here, first we have to write the topic, so animals and their numbers in a zoo, okay. So this is the topic, and this one is the x axis, and this one is a y axis, okay. This one x and y, so these are the two axes we have taken, and mark the O here. And now we have write the names of animals, deer, tiger, monkey, rabbit and peacock. And now we have to take the scale. So what is the scale there? On y axis 1 centimeter is equal to 4 animals. So number of animals we have taken, so 4, then 8, 12, then 16, 20, 24, like this, okay. So x axis, y axis is there on your screen. So 1 centimeter is equal to 4 animals, okay. Now we have to make the bar here. So deer,
how many DS are here? So 20 DS are here, so I have to mark up to 20 here. So 20 is here, so we have made the bar up to 20. Now tigers are 4, so 4 is here, so tiger, on tiger I mark like this. So you are observing that tiger. Now I have to mark on monkey, so monkey are 12, so here is a 12 monkeys, so I marked on 12 monkeys like this. Okay, and now rabbit. A rabbit, how many rabbit are here? 16 rabbits are here, so I marked on 16 rabbits here. And now you see here the bar will be up to 16 like this. Now peacock is here, so peacock is on your screen, so I marked here up to this one here, up to this one, so this one is a peacock here. So now we can do the bar graph of animals and their numbers in a zoo like this. Okay, now we'll move for the next question. Question number 3 is there. The table below gives the numbers of students who took part in the various items of the talent show as part of the annual school gathering. Make a bar graph to show this data. आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि यहाँ पर एक स्कूल की सालाना तकरीब में मुख्तलिफ प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले तलबा की तादाद झैल की जदुल में दिखाई गई है। इस मालूमात की मदद से सुतूनी तरसीम बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। y एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 चिल्ड्रंस। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है तो 1 सेंटीमीटर 4 बच्चों के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो दिया है डेटा, ड्रामा, डांस, वोकल म्यूज़िक है, देन इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है, एंड देन 1 एक्ट प्लेज है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि ड्रामा में कितने 24 बच्चों ने हिस्सा लिया, डांस में जो है तो 40 है, इसी तरह से नगमा सुराई में जो है तो 16 बच्चों ने हिस्सा लिया, मौसीकी में जो है तो 8 बच्चों ने हिस्सा लिया, इसी तरह से यकबाबी ड्रामा में जो है तो 4 बच्चों ने हिस्सा लिया है। ठीक है, तो इससे हम यहाँ पर ये डेटा को ले लेते हैं बार ग्राफ पर, ताकि हमें आसानी हो यहाँ पर अपना ग्राफ तैयार करने में। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले उन्वान ले लेते हैं। उन्वान हमने लिखा है यहाँ पर प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले तलबा, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस प्रोग्राम। सो कौन कौन से प्रोग्राम हैं हम देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर डेटा हमारे सामने दिया हुआ है। ठीक है, तो y एक्सिस हमने लिया, x एक्सिस लिया है। ठीक है, ये बना दिया हमने। अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ड्रामा है, डांस है, वोकल म्यूज़िक है, फिर इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर कि इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है और 1 एक्ट प्ले है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो है तो ये प्रोग्राम यहाँ पर लिख लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेंगे। क्या लेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4, then 8, then 12, then 16, then 20, then 24. ठीक है, then 28 is here. Okay, then you will see there 28, then 32, then 40. Okay, up to this one we have to take the 40, up to 40 this one. Okay, so here are the mark for this one, this all. So first we have to write the drama's graph here and drama's bar here. So on this graph we have taken up to 24, so 24 students participating in drama, so we have marked here up to 24. Now this one is 40 for dance, and you are observing this 40 is here. So dance, on dance you will observe that it will take up to 40 like this. Okay, and now there is a 16 for music.
So music is here, so 16 is here, so I marked on 16 like this. So you will see here this one is a 16, so up to 16 I mark the bar. And now instrumental music is here, up to 8 is there, so I have supposed to mark on 8 for this one. So I marked on this one, so this is up to 8. And now one act play, so this one is up to 4, so this is the 4. Okay, so like this we can make the graph here very easily. So it is the graph of students participating in various program. So we have taken the numbers of students on y-axis and program, and variety and various programs are there: drama, dance, music, and one act play and instrumental music. So that all are on x-axis. So like this we can draw the bar graph for this program and for this gathering. Okay, now we will move for the fourth questions, and fourth question we are supposed to do from yourself. Okay, and we will move for the next question, and next question is on your screen. So you students, first I want you from you to take a screenshot of this bar graph. From you can do this after the session. You can do the practice of this after the session. Okay, now we are supposed to make the another graph, and that is question number 5. So question number 4 is from your side. You are supposed to do that question, and question number 5 is on your screen. So students, we are trying to do this one. So students planted trees in 5 villages of Sangli district. Make a bar graph of this data. Scale on y-axis 1 centimeter is equal to 100 trees. So बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बच्चे स्कूल के बच्चे हैं, तो वहाँ पर सांगली डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे यहाँ पर कि सांगली ज़िले के 5 गांव में तलबा ने दरख्त लगाए हैं, और दी हुई मोतियात की मदद से सतूनी तरसीम हमें बनाना है। तो मोतियात आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो नेम ऑफ द विलेज है दूधगांव, बगनी, समडुली, आष्ठा, और उसके बाद में हम देख रहे हैं कोठे पैरान, है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है तो ये 5 विलेजेस के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड हेयर 500, देन 350, देन 600, देन 420 एंड देन 540 आर द numbers here for planted trees in each village. So we have to make the bar graph by using this data. So first of all we have taken that all data on your screen, and we have to make the bar graph. So suppose we have to do first students and trees planted. So this is the topic for this one. I have taken the x-axis here, then y-axis is here. So x and y-axis are here. Okay, and now we have to mark, we have to take villages on x-axis, the name of the villages here, and number of trees on x-axis. So what is the y-axis here? 1 centimeter is equal to 100 trees. So 100, then 200, then 3, 4, 5, 6, so up to 600. So 600 is the biggest number here. Okay, so scale we have taken on y-axis is 1 centimeter is equal to 100 trees. Okay, 1 centimeter is equal to 100 trees. So I mark like this. Okay, now first of all we have to do Dudgaon.
सो दूधगांव में आप देखेंगे यहाँ पर हमें कितना लेना है, दूधगांव में 500 है। ओके, सो आई हैव टू मार्क ऑन 500 लाइक दिस। ओके, सो 500 तक के हमने लिया है। देन बगनी देयर, so 350 is here, so 350 I have to mark on 350 here, so here I marked up to 350. Then Samduli is up to 600, so I marked on 600 this is, and I have to make the graph up to 600 like this. Then Ashta so Ashta is 420 there, so I have to make up to 4, and this is 20, so 420 is here. So this is the graph for Ashta. And then Kothe Piran is there. Kothe Piran is here, so you will see here how much trees are planted in this village. So 540, so these are the 540s here. So you will see here 540 is on your screen. So like this we can do the many question with the help of this data. And you are supposed to understand these all graph which is on your screen. सो यहाँ पर हम आखिरी सवाल है बच्चों, इस एक्सरसाइज कैसे करते हैं कि यशवंत एक हफ्ते में अलग अलग किस्म की वर्जिशों के लिए झैल के मुताबिक वक्त लगाता है। इस नक्शे व औकात की तफसील दिखाने वाली सुतूनी तरसीम मुनासिब पैमाना लेकर बनाइए। यशवंत गिव्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम एज शोन बिलो टू डिफरेंट एक्सरसाइजेस he does during the week. Draw a bar graph to show the details of his schedule using an appropriate scale. So you can see here types of exercises: running, cycling, mountaineering and बैडमिंटन है एंड योगासना है। तो आप देख सकते हैं बैडमिंटन है, कोई पैमाई है, साइकिलिंग है, योगासन है और दौड़ना है। तो इसके लिए आप देखिए कितना टाइम लगा रहा है, 35 मिनट्स है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 50 मिनट्स है, यहाँ पर 1.10 मिनट्स है, यहाँ पर 1.5 आवर्स है और यहाँ पर 45 मिनट्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें इस डेटा को पूरा मिनट में ही कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पर 1 घंटा 10 मिनट दिया है, यहाँ पर 1.5 घंटा दिया है ना, तो ये दोनों भी डेटा हमें यहाँ पर चेंज करना होगा। 1 घंटा 10 मिनट यानी कितना हो जाएगा, ये 70 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर 1.5 आवर है, यानी ये कितना हो जाएगा, ये 90 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम मिनट से इजीली यहाँ पर बार ग्राफ तैयार कर सकते हैं ना। ओके, सो वी हैव टेकन हियर दैट सिमिलर data over here, so I have to write here this one is 70, 1 hour कितना हो गया, 1 hour का 60 मिनट, then 10 minutes, so 70 minutes are here, 1 hour का 60 plus half hour का 30 minutes, so कितना हो गया, 90 minutes are here। ओके, सो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर इस तरह से 70 और 90 मिनट्स हमने यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर तैयार करते हैं ग्राफ इसका। तो इसमें हमें सबसे पहले टाइटल लिखना है। इसका टाइटल हमने लिया है टाइम अलॉटेड बाय यशवंत टू डिफरेंट एक्सरसाइजेस। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि टाइम अलॉटेड बाय यशवंत टू डिफरेंट एक्सरसाइजेस, दिस इज़ द टॉपिक। ठीक है, मुख्तलिफ वर्जिशों के लिए यशवंत का मुकर्ररा वक्त जो है तो क्या है, मुकर्रर करदा वक्त जो है उसका वो क्या है, तो इस पर मबनी हमें यहाँ पर ग्राफ बनाना है, ये हमारा उन्वान है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, एक्स महवर और वाई महवर, और यहाँ पर हमने जो है तो इस तरह से अब हमें यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर हमें स्क्रीन पर जैसे आप देख रहे हैं, हमें सबसे पहले यहाँ पर जो है तो एक्स एक्सिस पर एक्सरसाइजेस लिख लेना है। रनिंग है, योगासना है, योगासन, और फिर इसके बाद साइकिलिंग है, माउंटेनियरिंग है और बैडमिंटन। ठीक है, अब यहाँ पर स्केल क्या दिया था, तो टाइम्स इन मिनट्स है। अब स्केल अगर आप गौर कर रहे हैं, यहाँ पर जो स्केल दिया हुआ है
वो स्केल यहाँ पर हमें लेना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिनट्स है, ठीक है। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 minutes is for 1 hour, right? Then 70, okay, then 80, then 90, okay, then here is 100 and then 110, okay. So these are the time here, so we have to mark on that one. Scale is 1 centimeter is equal to 10 minutes. so running कितने मिनट्स की है? 35 मिनट्स की है। so 30 + 5 कितना हो गया? 35 मिनट्स हो गया। देन साइकिलिंग कितने मिनट्स की हो गई है? 50 मिनट्स की हो गई है, ठीक है। सो साइकिलिंग इज़ 50 मिनट्स, ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरह से आप उसके बाद माउंटेनियरिंग दिया है वो है 70 मिनट्स की। साइकिलिंग है, सॉरी साइकिलिंग हमने यहाँ पर योगासन है ना, ओके योगासन हमने लिया है यहाँ पर। फिर उसके बाद साइकिलिंग दिया है, साइकिलिंग हमें लेना है यहाँ पर 70 मिनट्स की, ठीक है। 70 मिनट्स में हमने साइकिलिंग लिया है। फिर माउंटेनियरिंग है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि माउंटेनियरिंग कितने मिनट की है। कोई पैमा 1.5 घंटे का करना है, ठीक है। 1.5 आवर है दिया हुआ है, तो 1.5 आवर पे आप यहाँ पर देखेंगे कि हमें इसे इस तरह से करना रहेगा। 90 मिनट्स है ना, तो यहाँ तक आएगा ये। फिर इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बैडमिंटन। उसके बाद जो दिया है वो दिया है बैडमिंटन। सो हमने यहाँ पर बैडमिंटन को कितने पर लिया है? आप देखते हैं बैडमिंटन जो दिया हुआ है वो है बैडमिंटन 45 मिनट्स दिया है, ठीक है। तो 45 मिनट्स के लिए हम यहाँ पर बैडमिंटन को ले लेते हैं, ओके। तो ये थोड़ा सा हमारा जो टेबल है इसका करेक्शन बुक के हिसाब से आप कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है बैडमिंटन जो दिया है वो 45 मिनट्स के लिए दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर रनिंग जो दिया है वो है 40 मिनट्स के लिए। फिर उसके बाद योगासना जो दिया हुआ है वो 50 मिनट्स का है, उस पर मार्किंग हमने किया है। फिर साइकिलिंग जो दिया है वो 70 मिनट्स के लिए दिया है, उस पर मार्क किया है हमने। फिर माउंटेनियरिंग दिया है 90 मिनट्स, उस पर मार्क किया है, उसका बार ग्राफ हमने यहाँ पर तैयार किया है। फिर बैडमिंटन जो है तो 45 मिनट्स का दिया है, उस पर हमने यहाँ पर मार्क किया है, ठीक है, इस तरह से। तो ये थोड़ा टेबल आप अपने तौर पे करेक्ट कर लेना, किताब में जैसा दिया हुआ है उसी हिसाब से ग्राफ बना है, ठीक है। यहाँ पर टेबल में थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। आज के सेशन में हमने जो ग्राफ के ताल्लुक से आपको मालूमात दी है इसे आपने ज़रूर से समझा होगा। साथ ही हमने जो ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर सॉल्व की है जो कि प्रैक्टिस सेट 19 है, उससे हमने यहाँ पर जो है तो 5 सवालात हल किए हैं। चौथा सवाल आपके लिए छोड़ा है, आप ज़रूर से उसको इस सेशन के बाद हल करें और कोशिश करें इसी तरह से ग्राफ तैयार करने के लिए, इसी तरह से बार ग्राफ तैयार करने के लिए, ठीक है। तो कोशिश कीजिए। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।